इसने एक एजम्पशन के साथ स्टार्ट करी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो तो जो डी ब्रॉगली इक्वेशंस है उनके साथ आपस में क्या रिश्ते होंगे, और आगे उसने लेमडा को वेलोसिटी के साथ जोड़ रखा है, बाकी ऑप्शंस इसने जनरेट ही नहीं करे। तो हमने जो टेक्निकली बात पढ़ी है वो क्या लिखा भाई, h बाई पी, ये लिखा ना। तो इस वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू P2 बाई P1, एस तो कॉन्स्टेंट। अब इस वाले केस में यहाँ पे P के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो एक बार लिख के देखते। P मीन्स mv, और इस कोई तरीका है क्या कि हम इसे हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, या हाफ mv स्क्वायर को mv के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करा और v से डिवाइड करा तो मोमेंटम की जगह लिख सकते हैं, तो इसे p की जगह लिख सकते हैं। p कैन बी रिटन एज 2ke बाई v, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं इक्वल टू, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखा, ke2 बाई ke1। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वेलोसिटी की बात आती है तब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इस वाली केस के अंदर v1 बाई v2 लिखनी है, v1 बाई v2। अब उसने मोमेंटम के ऊपर बात नहीं करी, उसने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात नहीं करी, उसने बात करी किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। तो क्या रिश्ते क्या है इसके साथ? इसके साथ रिश्ते ये है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी पहला ऑप्शन सही है, ये कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड अपने आप ही गलत हो जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द मास, ऐसे कैसे हो सकते हैं? वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर रही। अनप्रेडिक्टेबल, ये मतलब इंसानों के ऊपर एप्लीकेबल है। As we know that angular momentum is directly proportional to nh by 2 pi, or we can say that it is directly proportional to n only, but n is not in the option. Angular momentum is mvr is equal to nh by 2 pi. Let it be L, so L is directly proportional to n, but there is no option like n. So what is the alternate? Alternate is, we know that Rn is equal to R naught into n square. For hydrogen like atom, it's a R naught by n square. So if I focus on n only, it is going to be under root R. So I can write that is directly proportional to under root R. So R square is invalid statement, 1 by R is invalid statement, 1 by under root R is the invalid statement, and the only valid statement is under root R. The first part is having one word, may. What they are telling? Orbital having xz plane as node may be. If the plane is xz, then node may, if the plane is having xz as a node, orbital may be xy. So if the dxy is there, 3 dxy is there, nodal plane will be where x into y or x into z or y into z, it is going to be 0. If this is going to be 0, it will act as a nodal plane. So if I take xz plane, in this case x is going to be 0, but x is not going to be 0, but z is going to be 0. X is not going to be 0, but z is going to be 0. So the product is going to be, the function is going to be 0. In the case of yz, y is going to be, in this case y is not going to be 0, but z is going to be 0. So the product is going to be 0. So this is the way to find out if the wave function is, psi is going to be 0. If the psi is 0, it will have a wave function. It will have a nodal plane. The word is written may. So possibility exists. If it is dxy, it will have nodal plane in xz and yz. So xz has been mentioned, that's why this is going to be the correct statement. Now see the second statement. It said dxy has 0 radial node. Now they are very specific. Last time they told nodal plane, this time they are telling radial, and the left out option is the angular node. So the story takes a turn from here. As far as radial node is concerned, it's a n minus l minus 1. So for 3D, n is going to be 3, l means it is going to be 2,
So 3 minus 2 minus 1, this is going to be 0. But the statement becomes invalid if it is 4D is written. Suppose if it is 4D is written, then only one means in that case 3xy has a 0 radial node. This is going to be incorrect statement with the 4dxy. How it is? It's a 4 minus 2 minus 1. This is going to have 1. So both parameters are equally important. You need to know what the value has been written and what the parameter has been written here. Both quantum number, principal as well as azimuthal quantum number, play an important role. For example, if I write 4f, in this case also 4 minus 3 minus 1, this is going to be 0. The first part is talking about the plane, whereas second part is talking about the type of the nodes, whether it's axial, whether it's angular node or radial node. They are very specific about the radial node. So as per the formula, radial node is going to be 0. So both statements are the correct statement, but second is not the right explanation of the first part. Both statements are true and second statement is the correct explanation of the first part. Second statement is not the correct explanation. So second is the right answer. One transition is going to generate the energy, and this generated energy has been used to overcome the work function and provide the kinetic energy. What I need to find? I need to find the kinetic energy. So we know that it's a supplied energy minus work function. This will generate kinetic energy. This is going to give kinetic energy. Work function has been provided. It's a 2.5. So let's supply energy is x minus 2.5 is going to be kinetic energy. So if I find what the x can be, if I find the value of x, I can find the Ke. So I need to find energy. I need to find x, that is energy, for the transition from 4 to 2 in hydrogen atom. 4 to 2 in the hydrogen atom. So we know that it's a 13.6 into 1 by, it's a 4 to 2, so 4 minus 1 by 16. So this is 13.6 into 3 by 16, and options will be in the this unit is going to be electron volt. So 13.6 by 16 multiplied by 3, so this is very close to 2.55. This is very close to 2.55. So I know that what the energy has been provided. It's a 2.55 and work function was 2.5. So the kinetic energy is 0.05 electron volt. You have to reconfirm what the unit has been provided. It may be up to here it's electron volt, and finally the options are given in the joules, or one option is given in the electron volt, final answer is given in the joules, or vice versa. So we should be very specific about the units, what the units has been provided. In this case, the right answer is option number 2. Copper that contains 29 electrons. So we need to find how many orbitals will have how many electrons will have zero magnetic moment out of this 29. But how to decide? It can be decided by the magnetic moment, and we know that for every subcell there is only one orbital that contains m is equal to 0. So m is equal to 0 is valid for whether it's a S, P, D or F, or let's say G. All are having only one orbital, number of orbitals, m is equal to 0. This is going to be fixed for all. In S1, in P1, in D1, in F1, in G1. And how it is? Suppose for F, I know that L is equal to 3. So ML is going to be, or magnetic quantum number is going to be minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. So out of these 7 orbitals, only one orbital is going to have 0. In fact, all orbitals are having only one type of the digit. There is no repetition of plus 1, or there is no repetition of minus 1 also. Every time every orbital will have a specific number, and that number is not going to be repeated. So I need to write the configuration.
In case of copper, this is going to be 29. It's a 1s2, 2s2, 2p6. It's a 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. It's exceptional electronic configuration. So I need to find how many s is there. So s is basically 1, 2, 3 and 4th is there. But I should be careful. It's a 4. Each orbital should have 2 electrons. But this is having only 1 electron, so subtract 1. This is going to be 7. Because s is having only 1 orbital, each orbital can have 2 electrons. There are 4 s of the different value of n has been used in the copper. So the value is going to be 7 for s only. For p, how many p are there? How many p are there? You will see that it's a 1p, it's a 2p. So it's a 2 into 2, that is going to be 4. How many d are there? It's a 1 into 2. So answer is 2. 7, 4, 11, 11 plus 2, 13. So 13 is the right answer. 13 is the right answer, means option 1 is the correct statement. One quantum number is there, n is equal to 3 and L is equal to 0. It means it's a 3s. They want to know how many electron of potassium or anything else can be there in 3s. So if the 3s is there, the name of the element becomes irrelevant. Whatever the name is there, 3s will have only 2 electrons. So the right answer is 2. Because n, 3 and L, 0 means we are indicating the 3s orbital, and whether it's calcium, potassium or anything else, it is going to have only 2 electrons in the 3s. ऐसे सारे प्रॉब्लम एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन के ऊपर बनते हैं. थर्मोडायनामिक्स का रूल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल है. और अगर एनर्जी बराबर है तो क्या लैम्डा बराबर नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होनी है. तो इसने कहा कि भाई 2 कंडीशंस है और दोनों ही केस में लैम्डा बराबर है. कौन से केस में? पहली केस के अंदर हीलियम पॉजिटिव है और यहाँ पे ट्रांजिशन है 4 to 2 के बीच में, यानी कि एनर्जी एमिट हो रखी है. और हाइड्रोजन के केस में हमें पता नहीं कि n की वैल्यू कितनी है, n1 कितनी है, n2 कितनी है. बस इतना पता है कि दोनों साइड लैम्डा बराबर है. तो इस वाली साइड पे अगर हमने लिखा 1 by हीलियम पॉजिटिव, तो क्या लिख सकते हैं भाई? r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 by लोअर वैल्यू कितनी है 2, तो 1 by 4 माइनस 1 by 16. इसे सिंप्लीफाई करते r इंटू 2 होल स्क्वायर. क्यों? हीलियम की जेड कितनी है 2 और ये कितनी आ गई? ये आ गई 3 by 16. ये कितना भी 4. तो हमने क्या करा फाइनली r इज इक्वल टू 3 by इसको करा तो ये कितनी आ गई 4. तो 3r by 4 होनी चाहिए. हर उस ट्रांजिशन के अंदर 3r by 4 की वैल्यू आनी चाहिए. r कांस्टेंट है तो अगर 3 by 4 की वैल्यू आ गई, अगर 3 by 4 आ जाए तो फिर दोनों साइड पे लैम्डा बराबर है. बेसिकली लैम्डा क्या बराबर है? अगर 1 by लैम्डा अगर हमने ऐसा लिखा 1 by लैम्डा He पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 by लैम्डा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो हम इसे लिख सकते हैं ना लैम्डा He पॉजिटिव इज इक्वल टू लैम्डा हाइड्रोजन. इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं. तो इस वाली केस में हर एक के अंदर फाइंड आउट कर लेते. इस वाली केस में करा तो 1 by 4 माइनस 1 by 16, तो ये वैल्यू आ गई 3 by 16. हमें कितना चाहिए? 3 by 4. तो ये नहीं चलना. इस वाली केस में वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 4 माइनस 1 by 9. ये वैल्यू भी नहीं आ सकती. 3 और 1 है तो कितनी आ गई? 1 माइनस 1 by 9. ये वैल्यू भी नहीं आ सकती. इस वाली केस में कितनी है? 1 by 1 माइनस 1 by 4. तो ये आ गई 3 by 4. यानी ट्रांजिशन 2 से 1 की तरफ है. 2 से 1 की तरफ है. इस वाली केस में 2 मेजर प्रॉब्लम है. पहली बात, के अल्फा के बीटा किसे कहते हैं? नंबर 1. बीटा के बारे में पूछा नहीं, नॉर्मल सी बात है. मगर दूसरा जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि मोस्ले लॉ की इक्वेशन क्या है और उसे एनर्जी के साथ कोरिलेट कैसे करते हैं. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस करना है कि अल्फ़ा बीटा गामा ये जो बातें यूज करते हैं वो कहाँ से आ रही. तो अगर हमने कोई स्पेक्ट्रम निकाली, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करी और यहाँ पे डिफरेंट लाइंस हैं, इन डिफरेंट लाइंस ने एक ने यहाँ से जंप मारी, एक ने यहाँ से जंप मारी, एक ने यहाँ से जंप मारी. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है.
इस वाली पार्ट को लिखा k, इस वाली पार्ट को l, इस वाली पार्ट को m, इस वाली पार्ट को n। तो हर वो लाइन जो k के ऊपर आके रुक जाती है और l से स्टार्ट होती है उसे लिखते अल्फा। हर वो लाइन जो 1 पे आके रुकती है और 3 से स्टार्ट होती है उसे लिखते बीटा। हर वो लाइन जो 4 से स्टार्ट होती है 1 पे आके रुक जाती है उसे लिखते गामा। तो ये इसके डेफिनेशन थे, अल्फा बीटा गामा के डेफिनेशन। अब इस वाली पार्ट में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मोस्टली लॉ बेसिकली है क्या। तो अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। फिर ए क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बी क्या है, एस्टेरिक फैक्टर कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये ऑन एन एवरेज ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए 1 लेते हैं, ऑन एन एवरेज ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए 1 लेते हैं। 1 का मतलब हर बार 1 ले ऐसा नहीं है, कभी कभी 1.2 भी लेते, लेकिन ऑन एन एवरेज हमेशा 1 ही लेते। लेकिन इन सारी बातों का इस वाली लाइन से क्या लेना देना है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी डेरिवेशन देखनी होगी। और डेरिवेशन ऐसे ही कि भाई अगर जो लाइनें हैं ना, यहाँ पे जो हमने लाइनें बना रखी है, अगर मान लो ये अपना E2 है और ये E3 है और इस वाले को हमने E1 लिखा, तो डेल्टा E लिख सकते हैं ना, E2 माइनस E1। और इस वाली एनर्जी को जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है वहाँ पे लिखते हैं ना ऐसे 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे R की जगह हमने क्या लिखा, यहाँ पे Z माइनस बीटा होल स्क्वायर। और फिर जो हमने लिखी है 1 बाई n, मतलब इस वाली केस में आके रुका कहाँ पे, 1 बाई 1 पे, गिरी कहाँ से 1 बाई 2 पे। तो ये जो फॉर्मेट है इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस वाली केस में लिख सकते हैं Z माइनस बी बीटा होल स्क्वायर इंटू, इस वाली केस में जो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2.178 इंटू 10⁻⁻18। तो इस वाली वैल्यू को अगर हमने 2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 1 बाई 1 माइनस 1/4 इट इज़ गोइंग टू बी 3/4। तो 21 की अगर हमने 75% लगा ली तो यह आ जानी है कुछ 16 से थोड़ी ज़्यादा, तो 1.63 लगा लो, 1.63 इंटू 10⁻⁻18। ये आ गई एनर्जी। लेकिन इस वाली केस में अभी Z माइनस बी बीटा होल स्क्वायर भी लिखना है। अब इन सारी चीज़ों को प्रूफ करके करा क्या, अभी तक तो कोई कोरिलेशन दिखती नहीं, लेकिन कोरिलेशन है। कहाँ पे भाई, ऐसा लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा। तो हम लेमडा को ऐसा लिख सकते हैं ना, HC बाई E। E की वैल्यू हमें पता है, HC की वैल्यू भी मालूम है, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ये कितनी निकाली, 1.63 इंटू 10⁻18। तो ये सारी चीज़ें कितनी हो जानी है, ये करीब 1220 इंटू 10⁻10 हो जानी है, 1220 इंटू 10⁻10। और यहाँ पे Z माइनस बी होल स्क्वायर, ये पार्ट अभी रिजॉल्व नहीं करा। तो यहाँ तक आते 1 बाई लेमडा। तो इस वाली केस में हमने क्या निकाली, लेमडा की वैल्यू कितनी आ सकती है। अब यहाँ पे वापस आते, एक लेमडा दे रखी है, अगर दूसरी लेमडा भी उतनी आ गई तो पहली स्टेटमेंट सही है, और अगर लेमडा अलग आ गई तो पहली स्टेटमेंट गलत थी। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करना भाई इसकी लेमडा कितनी है। Z की वैल्यू दे रखी है 26 और B को हमने 1 एज्यूम करा है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस वाली पार्ट को लिख सकते हैं 1220, ये अप्रॉक्सीमेशन है, इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 25 होल स्क्वायर, 26 माइनस 1 तो 25 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई कितनी, 1220 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 625। 625 मीन्स 2 टाइम्स से थोड़ा कम का मतलब है इसे 1.50, तो 1.93 के अप्रॉक्स लगा लेती है। 1.93 इंटू 10⁻10 मीटर।
इन्होंने यूनिट किस में डाल रखी है, यूनिट डाल रखी है सेंटीमीटर में। तो अगर हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वैल्यू आ गई 1.93 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे कितना दे रखा है 2.2, गैप है। इसका ये मतलब है कि अगर हम z को 26 लेकर बनाए तो ये वैल्यू इतनी नहीं आ सकती, ये वैल्यू आएगी 1.93 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये बात गलत होगी। अगर हम इसे लिखें कि भाई ये जो बातें हैं, अभी हम लोगों ने पीछे देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द जेड स्क्वायर है। अगर इसकी स्क्वायर निकाल दी, न्यू कर दी, तो लिख सकते हैं ना ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी स्क्वायर नहीं होनी मगर इसकी स्क्वायर हो जानी है। तो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, सही बात है। तो इस वाली केस में क्या है, पहली बात गलत है और दूसरी बात सही है, फोर्थ इज द राइट आंसर।